Good morning, friends. Welcome, dear children, to my channel Simplified Maths. Hope you all are fine. Today, in this particular lecture, in chapter 10, lines, we are continuing with exercise 10.3. Last time, I think we have started exercise 10.3 and we have done up to 6th or 7th sum. Okay, maybe 6. And I told you to try up to 8 sum because 7 and 8 sum are also quite easy. Okay, but though I have a little bit of thinking that let me give the sum number 7 and 8 also, because these type of sums are always asked in the exam, sometimes in objective type or sometimes in a long questions. This type of steps means the question is such that that type of steps will come in the larger means bigger sums. SI. That is why I will do this sum. Now all of you see page number 228, exercise 10.3, sum number 7. The question is find the equation of a line parallel to. Now I am drawing the diagram. This is the line and parallel to the another line, parallel. Okay, so see, there are two lines I have drawn, out of which one line is given. Say this line is 3x minus 4y plus 2 equals to 0. ये लाइन को आप लो, say this is 3x minus 4y plus 2 is equal to 0. This is the given line. Okay, hope you can see this. And this is the line which is a required line, let us say. Now both of these lines are parallel and passing through the point minus 2 3 means ये जो line है ना, this line means required line passing through the point. So point minus 2 3 is somewhere on this line. Just say minus 2 3 is the point. Okay, now what will be the equation of the required line? Here equation of the required line, okay, of the required line is given by अब देखो ध्यान से, what is the condition for two lines to be parallel to each other? Okay, that we have to use. No, the two lines are parallel to each other, then their slopes must be equal. What you can say? Then their slopes must be equal, means slopes are equal, isn't it? Okay, so what is the slope of the given line? Same slope should be here. तो यहाँ पे slope क्या है? You know slope formula now? Minus a by b. Recall the formula, minus a by b. The slope is here 3 by 4. Hope you understand this. ठीक है, तो ये जो रिक्वायर लाइन है उसका स्लोप भी सेम रहना चाहिए, मतलब 3 by 4. Means this is 3x minus 4y, then here also for the required line it will be 3x minus 4y only. So equation of the required line is given by 3x minus 4y and then plus, okay, simply what you have to do, plus some constant k is equal to 0. That's all, plus some k is equal to 0. Why I change the constant? यहाँ पे क्या था, plus 2. So plus 2 you cannot take, because if you take the plus 2 here, then it will be the same line, coincident line. But the line is different, parallel to the given line. So constant will be only changed. Hope you understood this. Okay. So ये जो required line है उसका equation क्या हो जाएगा? 3x minus 4y plus k is equal to 0. ठीक है दोस्तों, राइट? ओके, सो ये हो गई हमारा रिक्वायर्ड लाइन एंड विच पासिस थ्रू विच पॉइंट, विच पासिस थ्रू विच पॉइंट, minus 2 3 passes through minus 2 3, which passes through the point minus 2 3.
ठीक है, राइट. सो नाउ दिस पॉइंट -2 3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. हाँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से पास हो रहे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट. सो यू पुट -2 3 हियर. सॉरी. सो इफ यू पुट -2 3 क्या मिलेगा हमको? यू हैव -6, then -12, 4 3s are -12 plus k is equal to 0. Okay, and so -18 go that side, so that you have k is equal to 18. k is equal to what? 18 हो गया. तो अभी ये जो k वैल्यू मिली हमको दोस्तों, ये k वैल्यू आप यहाँ पे रख दो in place of k, and so the required line. Okay, so the equation of the required line is, तो क्या होगा? 3x minus 4y plus k. So k कितना मिला हमको? Plus 18 is equal to 0. Okay, so now this is the answer. Okay, clear? Abhi the same problem I will do with the second method. The same problem will go with the second method. Second method just ध्यान से देखना इसको. और उसकी सेकंड मेथड है, सी सेकंड मेथड में ऐसा है कि द रिक्वायर्ड लाइन, ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन. कौन सी लाइन की पैरेलल है? विच इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम. जस्ट सी, पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0. मतलब therefore slope of the required line will be, suppose I call it m, then will be equal to 3/4, because इसका जो स्लोप है वही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का भी होने वाला है. सो 3/4 हो गया. ठीक है. एंड दिस लाइन, रिक्वायर्ड लाइन विल बी दिस, एंड विच पासिस थ्रू कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? -2 3. ठीक है. तो अब यहां पे मैं दूसरी क्या मेथड यूज करूंगा? यू हैव अ पॉइंट एंड अ स्लोप. देन व्हाट यू कैन डू? Use point slope form, isn't it? Okay, so using the point slope form, required line is, point slope form क्या होता है? y minus y1, so y minus 3 is equal to m is 3/4 slope, into x minus x1, so it will be x plus 2. ठीक है दोस्तों, राइट. अभी इसको आप ध्यान से देखो. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब ओपन ब्रैकेट करोगे ना, देन यू विल गेट द सेम आंसर. यही आंसर आएगा. चेक करना है तो कर लेना. आंसर विल बी 3x minus 4y plus 18 is equal to 0 will be the answer. मतलब सेम आंसर विथ अ डिफरेंट मेथड. ओके दोस्तों, ठीक है ना. सेम आंसर विथ अ डिफरेंट मेथड. क्लियर दिस, राइट. तो जैसे मैंने ये 7 सम किया ना, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था? पैरेललिज्म था. इट वाज अ पैरेललिज्म, राइट. नाउ इन द 8th सम द कंडीशन गिवन इज अ परपेंडिकुलरिटी. ओके, सो यहाँ पे पैरेलल था तो स्लोप इक्वल ले लिया. परपेंडिकुलर होता तो ये लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. So then what is going to happen? The product of their slope will be -1. Product of their slope will be -1. And using that concept, that sum also can be done by 2 ways. There are 2 ways, okay? Always. This type of sum will be done by 2 different ways. Okay? From my point of view, both the method is easy.
but specially for the perpendicularity, ये सेकंड मेथड इजी रहेगा. ठीक है, सेकंड मेथड जो है ना वो दोनों के लिए इजी है, लेकिन परपेंडिकुलर में ये मेथड जो है वो हमारी ज़्यादा इजी रहेगी. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, नाउ आई विल गो फॉर सम नंबर 9, not 8 1, sum number 9. So just see, it is angle between two lines. Find angle between two lines, right? ऐसे सम हमको दिया हुआ है 9 नंबर. Find the measure of angles. They say angles, मतलब कि दो आंसर दिए होंगे between two lines. Okay, now what are the lines given? The given lines are root 3x plus y is equal to 1. तो उसको root 3x plus y minus 1 is equal to 0. And the second line is x plus root 3y minus 1 is equal to 0. ओके, अभी इसका एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला याद है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan theta. Tan theta, theta is the angle between them. Either you take theta or you take alpha. So tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, क्या है फॉर्मूला? मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देख लिया है, लेकिन m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ दिस टू लाइन्स. ओके, so the slope of these two lines will be, whose slopes are तो हम एक का पहले का स्लोप जो है उसको मैं m1 बोलूँगा. ठीक है, m1 विल बी, स्लोप फॉर्मूला क्या है? माइनस a बाई बी, सो इट विल बी माइनस रूट 3. एंड m2 स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन. ठीक है, सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन रूट 3. Okay, it's a slope of the second line. So whose slopes are these and these? Say respectively. क्या बोलेंगे हम? Respectively. ठीक है, this is the slope given. ठीक है, right. अच्छा, slope मिल गया and you want to find out the angle between them. So if theta is the angle between them, either you say theta or alpha, angle, okay, between them means between these two lines. Then what is the formula? Tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ये है हमारी फॉर्मूला. ओके, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है ना, right? And now put the values. So m1 is minus root 3 minus 1 upon root 3. तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, बिकॉज इट इज माइनस, सो माइनस 1 बाई रूट 3 तो प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब m1 और m2 दोनों नेगेटिव है, सो माइनस माइनस वो भी प्लस हो जाएगा. सो 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3. तो यहाँ से भी ये रूट 3 कट हो गया, तो अपॉन में 2 आ गया. ठीक है, हियर यू टेक द एलसीएम. हाँ, सो एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट 3. हियर यू टेक मल्टीप्लाई विद रूट 3 because we have taken LCM, so it will become 3, but it is minus 3. Minus 3 plus 1.
correct? So modulus of -3 plus 1, and upon that root 3 LCM will go to the denominator, so it will be 2 root 3. ठीक है, right? Got this? Okay. अभी that means it is what, -2 upon 2 root 3. So मॉड्यूलस है मतलब पॉजिटिव तो हो गया. So it will be simply 1 upon √3, है ना? ओके, 1 अपॉन √3. ठीक है. सो ये हमारा tan थीटा का आंसर आ गया. सो ये हमारी नॉन क्वांटिटी है 1 अपॉन √3. दैट मीन्स थीटा का आंसर कितना आ गया, π/6. ये हमारा हो गया आंसर, एंगल बिटवीन द टू लाइन. ठीक है. अब यहाँ पे हो सकता है दोस्तों कि इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंगल्स, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ो ना, तो एंगल्स बिटवीन टू लाइन, तो हो सकता है उन लोगों ने क्या किया होगा कि एंगल्स में मैंने यहाँ पे ये मॉड्यूलस रख के पॉजिटिव लिया, सो आंसर वी गेट ओनली एक्यूट एंगल. लेकिन दूसरा एंगल अगर आप सोचो तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है. देखो यू एंगल की डायग्राम बनती है, ये तो ये है थीटा सपोज, तो ये जो है ये वाला वो π-θ हो जाएगा. एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है कि नहीं, राइट? बट if the two answers are given, you write down the two answers according to the NCERT, okay, syllabus or textbook, but in fact it is not correct. okay, हमारी स्टेट बोर्ड में वो एकदम सही दिया हुआ था दोस्तों कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज एक्यूट ओनली. दो लाइंस के बीच में एंगल जो है वो एक्यूट ही लेना होता है, ऑब्ट्यूज नहीं लेना होता है. ठीक है. तो एक्यूट वाला आंसर ही मैंने कंसीडर किया हुआ है, दैट इज π/6. बट अगर पीछे लोग दो आंसर देते हैं तो दूसरा आंसर क्या लिखोगे आप, π-π/6. ठीक है. सेकंड आंसर वुड बी π-π/6, मतलब 5π/6. लेकिन मेरे ख्याल से वो सही नहीं है. ओके. एंगल बिटवीन टू लाइन विल बी ऑलवेज एक्यूट. ये एक रूल है जो आपको कभी भी भूलना नहीं है. ओके. उसकी डेफिनेशन में ये चीज़ दिया हुआ है. ठीक है, राइट. नाउ आई विल गो फॉर द सम नंबर 12 दोस्तों. अभी मैं 12 सम करूँगा. ठीक है, सम नंबर 12. और 12 सम जो है वो क्या है, आप देखो ध्यान से. 12 सम में दिया हुआ है द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. सो थोड़ा सा डायग्राम भी सोचो आप. टू लाइन्स, सो सपोज कि भाई मैंने दो लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रफली यूं. दिस टू लाइन से एक लाइन है L1 एंड द सेकंड लाइन इज L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, मतलब ये पॉइंट है 2, 3. ओके. और दूसरा क्या दे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री. सपोज आई कॉल इट थीटा. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बिटवीन देम. एंड द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 2. ओके. इन द फिगर ऑल दिस थिंग एवरीथिंग इज रिटन. स्लोप ऑफ द L1 line is suppose slope of line L1 is M1 say 2. Then angle between them is 60 डिग्री. ये भी हमने ले लिया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. तो इसमें भी फिर से एंगल वाली फॉर्मूला ही आएगी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. लेट अस से अदर लाइन मतलब L2 ना. ओके. लेट M2 इज द स्लोप ऑफ L2. दूसरी लाइन का स्लोप क्या है दोस्तों, L2.
एंड थीटा इज इक्वल टू 60 है ही, बराबर, ये गिवन है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम वाला अभी अभी जो हमने यूज़ किया ना वही यूज़ करेंगे, टेन थीटा फॉर्मूला। सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, राइट। अब इसमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख दो, सो √3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मॉड्यूलस को आप एलिमिनेट मतलब रिमूव करोगे मॉड्यूलस को, राइट, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ m2 एंड वेन एवर यू रिमूव मॉड्यूलस एंड इनसाइड द मॉड्यूलस द क्वांटिटी इज अननोन, अंदर की क्वांटिटी अननोन है ना दोस्तों, इजंट इट। तो क्या करेंगे आप, प्लस और माइनस √3 मॉड्यूलस निकाल दो, दैट इज क्या करोगे आप, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू √3 और 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस √3। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया। ओके, अब आगे का जो काम है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों। इसको आप सिंप्लीफाई करके, दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m2। ठीक है ना, यू विल गेट m2, फाइंड m2। ठीक है, अब m2 मिलने के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 3, हाँ, तो फिर क्या करोगे, देन आफ्टर दिस यूज, ये मैं हिंट लिख के रखा हूँ आपके लिए, यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या करोगे आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, राइट। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, वॉट एवर आंसर इज कमिंग, आंसर विल बी इरेशनल, क्योंकि √3 है ना, तो √3 के फॉर्म में कुछ ना कुछ इरेशनल आंसर आएगा स्लोप का। जो भी आता है ऐसे ही कर दो, हो सकता है कि उसमें वो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट वाला करे। हाँ, आंसर पीछे देख के एक बार देख लेना कि कॉन्जुगेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर किया है तो कॉन्जुगेट करके फिर जो m2 मिलता है वो स्लोप कंसिडर करोगे और ये पॉइंट कंसिडर करोगे। ठीक है, राइट, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्या मिलेगा, y माइनस 2 सॉरी 3 y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1 दैट इज 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये लाइन है हमारी। ठीक है, इसमें m2 जो है आप दोस्तों, वो m2 आपको फाइंड करके रखना होगा। ये m2 हमारा मिसिंग है जो आपको ऊपर से मिलेगा, वो जो m2 मिलेगा वो m2 यहाँ पे रखना होगा। गॉट दिस? ओके, राइट। सो दिस इज द हिंट आई हैव रिटन एंड यू कैन ट्राई अकॉर्डिंग टू दिस। ओके दोस्तों, राइट। देन अभी इसमें और 2-3 सम्स है जो हमको करने पड़ेंगे दोस्तों 10.3 में, राइट। और इसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में क्या हुआ है कि मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड देन लास्ट एक्सरसाइज। बट इन गुजराती मीडियम there is a topic given which is given to the back. ओके, ये बैक साइड में जो दिया हुआ है ना पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में मेरे ख्याल से अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है ना दोस्तों, तो आप वहाँ पे देखो, मैं जो पेज नंबर बोलूँ, पेज नंबर जो है 477 में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 दिया हुआ है, देखो 478 पेज पे
एक्सरसाइज 10.4। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.5 वो भी पीछे दिया हुआ है। तो एक्चुअल में अभी तक हमारी दो एक्सरसाइज बाकी है, 10.4 एंड 10.5, जो पीछे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो आएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है ना, राइट। तो ये 10.4 वाला टॉपिक जो है वो भी आएगा, और उसके बाद अभी 10.3 भी हमारा थोड़ा सा करना बाकी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, बराबर कि नहीं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसके बाद 10.5 और बस, और फिर तो इसमें भी है, बराबर ना। सो अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा लेक्चर इतना शॉर्ट ले रहा हूँ, बट we'll try to finish as much as possible before 27-28, जहाँ जितना भी होगा मैं ट्राई करूँगा, and accordingly you will try to give your unit test exam. Okay दोस्तों, thank you very much, have a nice day, bye bye.